is group number 2. So we are going to discuss group number 2. So group number 2, in this group we have beryllium, magnesium, calcium, strontium, and radium. These are the members of group 2. What is general configuration? General electronic configuration for group 2. Beta, what does it mean? General electronic configuration. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज नहीं हो रही होती है डाउन द रोड? नहीं बेटा, इसमें 2 होता है, 2 चल रहा था। इसमें बेसिकली S2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन NS2 में होगा, where N is वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसकी मिसाल है जैसे बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर 4 है ना, तो इट विल बी 1s2 तो 2s2, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इधर आया 2s2 में। अब बेटा ये जो 2 है ना, ये पीरियड 2 को शो करता है। ये जो 2 है ना, ये वाला 2 इसका मतलब है बेरिलियम बिलोंग्स टू पीरियड 2, और ये वाला जो 2 है इट शोस दैट इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। सही, ठीक है। फॉर मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर इज 12, तो इट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अच्छा, अब 3s2 में the 3 shows that magnesium belongs to period 3 and this s2 shows that magnesium is from group 2। अब कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में होगा? 4s2। और स्ट्रोंशियम का 5s2। और रेडियम का 6s2। 6s2। ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 5 और दिस इज 6। ठीक है, तो इस वजह से जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, वेयर N इज द वैलेंस शेल। ठीक है बेटा। चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज atomic radius and shielding. जी बेटा, predict what happens to shielding and what happens to atomic radius. Shielding and atomic radius are increasing. Shabash. Down the group, both shielding and atomic radius will increase. Shielding as well as atomic radius both will increase down the group. So now this is beryllium with proton number 2, then magnesium. Sorry, beryllium's proton number is 4, then magnesium proton number 12, calcium proton number 20. So देखें, it is 2 and 2, magnesium is 2 and 8 and 2, calcium is 2 8 and 2, and then strontium, then barium. So down the group, inner shell electrons increases down the group. Inner shell electrons increases, shielding increases, radius increases. What happens to ionization energy down the group? Ionization energy decreases. Shabash. What about reactivity? Reactivity also decreases. देखो, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है या बेरियम से? Barium से easy है। You can easily remove electron from barium. So which one is more reactive, beryllium or barium? Barium. Barium. So when ionization energy increases, reactivity. Sorry, when ionization energy decreases, reactivity increases. The reactivity of metals is related with ionization energy. ठीक है, जितनी metals हैं उनकी reactivity हम ionization energy से estimate करते हैं। ठीक है, for metals. This rule is for metals, that reactivity of metals is inversely proportional to ionization energy. This means कि जितनी ionization energy ज़्यादा होगी उतनी reactivity कम होगी and vice versa. But this happens only for metals. ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए क्या चेक करेंगे? Atomic radius. हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। ज़ाहिर जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना रेडियली वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
तो उतना ज़्यादा वो Electronegativity रिएक्शन, work like ability to attract a shared pair. हाँ, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, या इन जनरल एक किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, तो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मैटर्स की रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि मैटर्स की रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं विद आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, जब आप लिख लें तो फिर मुझे बताएं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, नजर आ रही है। जी, जब लिख लें तो बताएं। Okay. लिख लिया। Okay, so now the next concept is flame test. Flame test for group 2 metals. So in group 2 we have beryllium, then magnesium, then calcium, then strontium, then barium. तो जो बेरिलियम है इसका तो फ्लेम नहीं है, नो फ्लेम कलर। जो मैग्नीशियम है, जी बेटा यू टेल मी The white. हाँ, वाइट फ्लेम फॉर मैग्नीशियम, वाइट फ्लेम फॉर मैग्नीशियम। अच्छा, व्हाट इज द फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम? इट इज ब्रिक रेड। ठीक है, ब्रिक रेड फ्लेम। अच्छा, व्हाट इज द फ्लेम कलर ऑफ स्ट्रोंशियम? क्रिम्सन फ्लेम। ठीक है, एंड व्हाट इज द फ्लेम कलर ऑफ बेरियम? बेरियम इज एप्पल ग्रीन। कुछ सिग्निफिकेंस आप नोट कर रही हैं स्क्रीन पे? क्या ज़्यादा कलर जैसे। हाँ, इससे पहले मैंने आपको पीरियड 3 के कलर्स बताए थे। ठीक है, सो फ्लेम कलर्स पीरियड 3 के हैं और ये ग्रुप 2 के मेंबर्स के हैं। यही सिलेबस के डिस्कशन है। अच्छा बेटा, ये रूल भी ध्यान में रखें कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स कैन कंबस्ट इन ऑक्सीजन। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स वो बर्न होते हैं एयर में। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स burns in oxygen। ठीक है, और ये रूल अप्लाई होता है, मेटल जब बर्न होता है ऑक्सीजन में तो यू गेट मेटल ऑक्साइड। The only product we obtain is metal oxide. And but such reaction is combustion reaction. This is combustion reaction. यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स की कंबस्शन पॉसिबल है। लिख लिया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट थिंग इज के व्हाट हैपेंस when these metals reacts with oxygen? Reaction with oxygen. So beryllium, it is solid. When it reacts with oxygen, which thing is formed? And magnesium reacts with oxygen. Or in order to balance the equation, we take 1/2 here. And then calcium reacts with oxygen. And then strontium reacts with oxygen. And then barium reacts with oxygen. जी बेटा, what is the product? ये सबसे टॉप पे हाँ, beryllium oxide. beryllium oxide is solid, okay? और then magnesium oxide, then calcium oxide, then strontium oxide, और then barium oxide. अच्छा बेटा, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स जो होती हैं वो सिल्वर शाइनिंग मेटल्स होती हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स
किस कलर की होंगी? सिल्वर शाइनी मेटल्स। अच्छा, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स जो हैं वो वाइट सॉलिड हैं। ठीक है, वो हैं वाइट सॉलिड। आप बताओ ये पहले वाले रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? case white solid is formed. वाइट सॉलिड फॉर्म्स। ठीक है, वाइट सॉलिड फॉर्म्स। अच्छा, दूसरे वाले की भी यही होगी, वाइट Yes. सॉलिड फॉर्म्स। लेकिन बेटा साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि वाइट फ्लेम ऑब्जर्व, क्योंकि जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो वाइट फ्लेम विल बी ऑब्जर्व। Right. अच्छा, कैल्शियम के केस में वाइट सॉलिड फॉर्म्स तो फ्लेम कलर क्या होगा? Brick red. रेड फ्लेम ऑब्जर्व होगा। और फिर वाइट सॉलिड फॉर्म और कौन सा फ्लेम? Crimson. क्रिम्सन फ्लेम। और फिर वाइट सॉलिड एंड कौन सा Apple फ्लेम? green flame. Apple green. एप्पल ग्रीन फ्लेम। डन बेटा? और इसे मैं साइड वाला नोट लिख रही हूँ। देखिए ओके, अब बेटा ग्रुप 2 मेटल्स का रिएक्शन है विथ वाटर। ग्रुप 2 मेटल्स reaction with water। तो अब ग्रुप 2 में we have beryllium। तो beryllium को जब वाटर में ऐड करें तो नो रिएक्शन हैपेंस, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, आप इधर एक इस पेज जितनी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना सामने स्क्रीन, इस स्क्रीन वाले पेज जितनी जगह छोड़ के मैंने थोड़ा आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। पहले आप ये लिखें, चलिए लिखिए। इतनी जगह छोड़ के फिर ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। और ये कॉन्सेप्ट है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये क्या है? अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल का ये रिलेशनशिप है। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप 13 है जो पहले ओ लेवल में ग्रुप 3 होता था, ये ग्रुप 14 है जो ए लेवल में ग्रुप 4 होता था। अच्छा, अब इधर जो मेंबर है ना वो लिथियम है, इसके नीचे जो मेंबर है वो है सोडियम, यहाँ जो मेंबर है ये है बेरिलियम, और इसके नीचे जो मेंबर है दैट इज मैग्नीशियम। इधर जो मेंबर है दैट इज बोरॉन, इसके नीचे है एल्यूमिनियम। इधर जो मेंबर है वो कार्बन है, इसके नीचे जो मेंबर है वो सिलिकॉन है। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप का बेटा मतलब ये है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इस तरह से ये डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, तो दे रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज। जो लिथियम है वो अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है विद मैग्नीशियम, ठीक है। बेरिलियम अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है विद एल्यूमिनियम। बोरॉन अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है विद सिलिकॉन। अच्छा, ये रिजेंबल इसलिए करते हैं बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन डायगोनल, ठीक है। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन डायगोनल of periodic table
ये ऐसे इसलिए प्लेस्ड है क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, या फिर ये ऐसे प्लेस्ड थे और फिर नहीं पता नहीं चला नहीं कि नहीं नहीं, ये जो प्लेस हुए हैं वो तो प्रोटॉन नंबर के बेस पे प्लेस हुए हैं। हम्म डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से प्लेस नहीं किया गया पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में तो अपना प्रोटॉन नंबर की वजह से प्लेस किया गया, फिर जब प्लेसमेंट के बाद पता चला कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज में मैच करते हैं। अच्छा, लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सी जगहों पे डायगोनली एलिमेंट्स रिजेंबल नहीं भी करते, ठीक है, और बहुत सी जगहों पे डायगोनली रिजेंबल करते भी हैं। कहाँ कहाँ रिजेंबल करते हैं और कौन कौन से आपको पता होने चाहिए वो मैं लिख दूंगा। जो मैं आपको लिखवा दूंगा वो डायगोनल रिलेशनशिप वाले रिजेंबलेंस आपको आनी चाहिए, बाकी आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी बाकी कंपलसरी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। और जो दूसरे वे में डायगोनल बन रहा है जैसे नहीं, उस तरह बेरिलियम और नहीं, ये डायगोनल इस वे में जो डायगोनल है यहाँ रिजेंबल करेंगे प्रॉपर्टीज, दूसरे वे में नहीं करती। यानी आप सोडियम और बेरिलियम का पूछ रहे हो, सोडियम और बेरिलियम की नहीं मैच करती, ये इस तरह से मैच करेंगी। फ्रॉम डायगोनल इस तरह से हो कि टॉप टू बॉटम जो है वो लेफ्ट टू राइट आए, टॉप टू बॉटम में लेफ्ट टू राइट आए, तब ये मैच करेंगे। एलिमेंट प्रेजेंट फ्रॉम डायगोनल ऑफ पीरियोडिक टेबल रिजेंबल in their properties। अच्छा, अब आपको कौन सी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, ये जो लिथियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोजेस exactly in the same way as magnesium nitrate decomposes। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट की जो डिकम्पोजिशन है, लिथियम नाइट्रेट की जो डिकम्पोजिशन है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट की तरह होती है। अच्छा, ये हम लेटर ऑन जब मैं नाइट्रेट पढ़ाऊंगा वहां फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये डिकम्पोजिशन कैसे होगी और प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम resemble in their properties। बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं कैसे? बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक। आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड उसी तरह एम्फोटेरिक है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों पे वो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। एल्यूमिनियम बोथ डेवलप प्रोटेक्टिव लेयर of their oxide। दोनों अपने ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, दोनों पानी से रिएक्ट नहीं करते विद वाटर। और दी बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, doesn't react with water। लेकिन एल्युमिनियम का वाटर से रिएक्शन पड़ा नहीं था जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट बना था? एल्यूमिनियम का वाटर से रिएक्शन, वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में ऐड किया था, तो AlOH होल टेकन 3 वो पूछ रहे हो? अच्छा, सही है। वो एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी में ऐड किया था। एल्यूमिनियम आप चेक कर लें अपने नोट्स में, आई थिंक पिछले लेसन में एल्यूमिनियम का पानी से रिएक्शन पढ़ा है हमने कि नहीं? हाँ, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अच्छा, और बेटा फिर जो थर्ड थिंग है ना वो कार्बन सॉरी बोरॉन और सिलिकॉन दोनों, बोरॉन एंड सिलिकॉन बोथ आर मेटलॉइड्स, ये दोनों में कॉमन है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह से होती है, which resembles with metals as well as with non-metals in their properties।
लिखिए। ओके, तो अब देखें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब बेरिलियम, अच्छा अब उस जगह छोड़ी थी वहाँ पे आ जाएं। The group 2 metals reaction with water. The beryllium reaction with water does not happens. What could be the reason? Why beryllium does not react with water? Beryllium does not react with water. I can't hear you, beta. नहीं पता सर। Beryllium में वो protective layer form होती है ना, like aluminum में beryllium forms a protective layer of its oxides, which prevent it from reaction, ठीक है बेटा? Okay. This is how beryllium goes with water, and then comes magnesium. Its reaction with water. जी बेटा, could you tell me what happens when magnesium is made to react with water? वो completely वो insoluble होता है, तो turbid solution बन जाती है। हाँ, वो क्या चीज? MgOH twice की। शाबाश शाबाश बेटा। MgOH whole taken twice ही बनेगा सिर्फ। Plus gas, hydrogen gas। शाबाश। तो अब जो MgOH whole taken twice है ये solid है, ये insoluble है। वाटर के साथ 2 लगा दे तो the reaction is balanced। अब यहाँ 2-3 बातें जो डिस्कस करनी। एक तो ये रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, रिएक्शन इज वेरी स्लो। अच्छा, दूसरा इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? White precipitate। हाँ, वाइट प्रेसिपिटेट और सोल्यूशन क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग बेटा चूंकि रिएक्शन बहुत स्लो है ना, तो हाइड्रोजन गैस का पता ही नहीं चलेगा। फ्रीजिंग का आपको फील नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो है। तो वाइट प्रेसिपिटेट या सोल्यूशन बिकम्स क्लाउडी। बस ये ऑब्जर्वेशन, सोल्यूशन बिकम्स क्लाउडी। अब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? HCl से रिएक्ट करता है? नहीं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अच्छा हाँ, स्टीम से। Mg is made to react with steam. Steam is basically H2O gas. अब क्या प्रोडक्ट होगा? MgO। MgO भी सॉलिड है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। अब आप ऑब्जर्वेशन में फ्रीजिंग या बबलिंग लिख सकती हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी खासी होगी। ऑब्जर्वेशन इज फ्रीजिंग, बबलिंग, और दूसरी है वाइट सॉलिड या वाइट प्रेसिपिटेट। Solution turns cloudy. Silver shiny metal dissolve. बेटा जब आप पीरियड 3 के एमसीक्यूज कर रही थी तो आप जो टॉपिक हमने पढ़ा वो रिलेट हो रहा था? इजी थे आपके लिए एमसीक्यूज? हेलो जी हेलो बेटा। जी सर। मैंने कहा जब आप पीरियड 3 के एमसीक्यूज कर रही थी तो इजी थे आपके लिए? हाँ इजी थे, बस 2 मसले आ रहे थे अब तक। मुझे पीछे जाके फर्स्ट चैप्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला था वो वाला रिवाइज करना पड़ा था इसके लिए। अच्छा तो जब लिख लें फिर बताएं। लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद बेटा मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। अच्छा, आपको याद है मैंने बताया था कि मेटल का जब वाटर से रिएक्शन हो तो क्या प्रोडक्ट होगा, और मेटल का जब स्टीम से रिएक्शन हो तो क्या प्रोडक्ट होगा? यू रिमेंबर दैट? हेलो कैन यू हियर मी? जी सर, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, यू रिमेंबर दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम?
वाटर में When metal reacts with water, what is produced? When metal reacts with steam, what is उसका produced? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड. जी जी शाबाश. इधर क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और इधर फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. अच्छा लेकिन जी सिंस जी बेटा एनी क्वेश्चन? नो सर. मेरी आवाज कटे तो मुझे बताया करें सो दैट आई कैन रिपीट दैट. अच्छा अभी सही आ रही है. अच्छा ओके. नाउ यू नो दैट beryllium and magnesium, then calcium, then strontium, then barium. So what is the trend of reactivity? Increasing down the group. Increasing down the group. Okay. So ये वाले जो हैं they are less reactive. That is why beryllium does not react with water and magnesium reacts very slowly with water. But rest of the elements, calcium, strontium, and barium, they are very reactive. They are reactive elements. And this barium is very reactive. So since calcium, strontium, and barium are reactive metals, so they are reacted with water, not with steam. Water, not with steam. समझ आई बेटा? स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो उनका ऑक्साइड बन जाएगा. हाँ लेकिन ये बेरियम का जो रिएक्शन स्टीम से है ना, वो बड़ा डेंजरस किस्म का हो सकता है. क्योंकि बेरियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. तो स्टीम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? वाटर से कम रिएक्टिव क्यों होगा? स्टीम में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. ओके. तो स्टीम में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो फिर जो रिएक्शन होता है वो डेंजरस है. ठीक है. ओके. अच्छा बेटा स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर नज़र आ रही है. ये थोड़ा सा देखिए. बेटा नजर आ रही है वीडियो? हाँ नज़र आ रही है. इसमें आप मुझे बताओ कि ये ग्रुप 2 मेटल्स हैं, कौन सी आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी मेटल किस टेस्ट ट्यूब में है? हाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम. बेरिलियम तो रिएक्ट नहीं करती. बेरिलियम रिएक्ट नहीं करती. सही. जी आप बताएं. सोचने का है. लेफ्ट पे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है वो मैग्नीशियम क्या? हाँ वो मैग्नीशियम है. यस. सबसे विगरस रिएक्शन किस में हो रहा है? सेकंड वाली में. सेकंड वाली में क्या होगी फिर? बेरियम. बेरियम में. ठीक है. और जो आखिरी दो हैं वो कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम की होगी. सही. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. तो इस वजह से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को हम स्टीम से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वाटर से रेडियली इनका रिएक्शन हो जाता है. तो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करे क्या बनेगा? CaOH twice. हाँ और प्लस H2. प्लस H2. ऑब्जर्वेशन क्या होगी? फिजिंग और वाइट प्रेसिपिटेट. नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है. फिजिंग या बबलिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है. सिल्वर शाइनी मेटल डिसॉल्व्स. हाँ सिल्वर शाइनी मेटल डिसॉल्व. यस सिल्वर शाइनी मेटल डिसॉल्व. ठीक है. और सेम इज द ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्शन फॉर स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. बस ये नोट लिख दें. सेम हैपेंस. सर वाइट सॉलिड डिसॉल्व्स बोलने में और सिल्वर शाइनी मेटल डिसॉल्व्स बोलने में डिफरेंस है या एक ही बात है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को सिल्वर शाइनी मेटल्स बोलते हैं. वाइट सॉलिड भी ठीक है कंसीडर हो जाएगा.
Same. Same happens with strontium and barium. जी बेटा, जब लिखने फिर बताएं। जी बेटा, Wait a second. डन। Yes, done. बेटा, group 2 metals, they react with acid. Okay, all group metals react with acids. Exceptional case for H2SO4. तो H2SO4 का मैं चैप्टर के एंड पे पढ़ाऊंगा कि क्या मसला है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन बाकी एसिड से सारी ग्रुप 2 मेटल्स रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा कि मेटल जब रिएक्ट करे एसिड से तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? Salt and water. सॉल्ट एंड वाटर नहीं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, तो अब ऑब्जर्वेशन बेटा क्या होंगी? अगर जो मेटल है ये ग्रुप 2 का मेटल हो तो क्या ऑब्जर्वेशन होंगी? Shiny solid. Silver, shiny solid disappears, और fizzing, bubbling, तो क्या हाइड्रोजन गैस बन रही है? fizzing या bubbling? अच्छा, let us the next thing, like beryllium, which is solid, it reacts with HCl, which is aqueous. अच्छा, magnesium, solid, if it reacts with HNO3 एंड सो ऑन। बस इसी तरह किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ के बाकी सारे एसिड्स के साथ भी ये रिएक्शन हो सकता है। वी गेट बेरिलियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, वी गेट मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस, टू हियर टू हियर। ठीक है।